वेलकम बैक एवरीवन। सो कंटिन्यूइंग इन थोरैक्स, आज हम पढ़ेंगे हार्ट। सबसे पहले जनरल फीचर्स। तो हार्ट इज अ कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन which is enclosed by पेरिकार्डियम, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। नाउ सिचुएशन ऑफ हार्ट, इट्स लोकेशन। हार्ट इज सिचुएटेड इन मिडल मीडियास्टिनम obliquely behind body of sternum and adjoining costal cartilage. One third of heart is situated right to the sternum and remaining 2/3 is situated to the left of the sternum. The direction of blood flow in heart is downwards, forwards and to the left. The dimensions of heart are 12 into 9 centimeter, and in female it is of 250 gram, while in males it is of 300 gram. So this was. Now moving on to external features of heart. Apex of heart is directed downwards, forwards and to the left side, same as the direction of blood flow in heart. Now base of the heart is the posterior surface of heart, which is directed backwards. Besides, we are having three other surfaces. Anterior surface, which is also known as sternocostal surface. Inferior surface, known as diaphragmatic surface, and left lateral surface. We are having four borders: superior border or upper border, inferior border or lower border, left and राइट बॉर्डर। अब अगर हम इसको हार्ट का डायग्राम माने, ये साइड लेफ्ट साइड हो जाएगी और ये राइट साइड। तो इधर लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। अब एट्रियम और वेंट्रिकल को जो सेपरेट करता है उसे हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ये एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव भी अब दो पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज anterior atrioventricular groove and posterior atrioventricular groove। जो आगे साइड पर होगा वो anterior, जो पीछे डॉटेड में जो है वो posterior। अब ये anterior posterior भी फर्दर डिवाइड होंगे as left and right, left and right। तो इतना पोर्शन जो हमारा है, दिस इज लेफ्ट एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। सिमिलरली जो ये वाला पोर्शन है, इट इज राइट पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव।
अब जो हमारा लेफ्ट एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और हमारा जो राइट एंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव को ही हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कस। अब दो एट्रियम के बीच में जो ग्रूव प्रेजेंट है, इट इज नोन एज इंटर एट्रियल ग्रूव। It is further divided as anterior and posterior. Anterior interatrial groove and posterior interatrial groove. Similarly, दो ventricles के बीच में जो groove present है, it is known as interventricular groove. Which is also divided as anterior interventricular groove and posterior interventricular groove. जो हमारा posterior interventricular groove होता है, it is present on inferior surface of heart. And posterior interventricular groove is present near left margin of heart. वही anterior interventricular groove is present on anterior surface and it is present near right margin of heart. So आपको इन सभी ग्रूव्स का नाम कैसे दिया गया है वो पता होना चाहिए, ताकि हम आर्टरीज का जब कोर्स पढ़ें तो उस टाइम आपको दिक्कत ना हो। नाउ एपेक्स ऑफ हार्ट। Apex of heart is present entirely in left ventricle. It is also directed downwards, forwards, and to the left side. You should remember its position. It is present in left fifth intercostal space, lateral to mid-sternal line and medial to mid-clavicular line. जो लाइन हमारे क्लेविकल बोन से के सेंटर से पास होते हुए नीचे आती है, उस लाइन के मीडियल साइड पे एपेक्स प्रेजेंट होता है हार्ट का, एंड जो लाइन स्टर्नम के सेंटर से पास हो रही है उसके लेटरली प्रेजेंट होता है। ये होता है अडल्ट्स में, वेयर एज इन चिल्ड्रन लेस देन 2 years it is present in left fourth intercostal space and on mid clavicular line. तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। Except children less than 2 years, it is present in fifth intercostal space, and in children less than 2 years, it is present in fourth intercostal space. Moving on to base of heart. हमने पहले देखा था that base is present posteriorly. It is the posterior surface of heart which is directed backwards. तो हमारा बेस कंप्लीटली फॉर्म होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम के मेजर पोर्शन से एंड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ राइट एट्रियम। अब हमारे लेफ्ट एट्रियम में चारों पल्मोनरी वेन्स ओपन होती हैं। तो अगर हमें पोस्टीरियरली हार्ट पर कहीं भी 4 ओपनिंग्स दिखे तो वो हमारा लेफ्ट एट्रियम है, और राइट एट्रियम पर 2 ओपनिंग्स होती हैं, सुपीरियर वेना कावा की एंड इंफीरियर वेना कावा की। ये सुपीरियरली प्रेजेंट होगी, ये इंफीरियरली प्रेजेंट होगी। नाउ बेस जो हमारा हार्ट का होता है, इट एक्सटेंड्स
from T5 to T8 in lying position and T6 to T9 in erect position, जब हम खड़े होते हैं. मूविंग ऑन टू सर्फेसिस ऑफ हार्ट, हमारे पास 3 सरफेस थे. एंटीरियर सरफेस ऑल्सो नोन एज स्टर्नोकोस्टल सरफेस, तो एंटीरियर सरफेस इज मेनली फॉर्म्ड बाय राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल mainly, whereas left ventricle and left auricle gives minor contribution. यहाँ हम देखेंगे एरिया ऑफ सुपरफिशियल डलनेस. हमारे हार्ट की एंटीरियर सरफेस का मैक्सिमम पार्ट लेफ्ट लंग कवर करके रखता है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जहां पर लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है उसके पीछे का पार्ट कवर नहीं होता है. तो द अनकवर्ड पार्ट ऑफ हार्ट विच इज नॉट कवर्ड बाय लंग अपीयर्स डल ऑन परकशन. तो इसलिए इसको हमने नाम दिया एरिया ऑफ सुपरफिशियल डलनेस. नेक्स्ट इज इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट, जिसको हम बोलते हैं डायाफ्रेगमेटिक सरफेस. इट इज फॉर्म्ड मेनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल. द लेफ्ट 2/3 portion of this surface is formed by left ventricle and right 1/3 portion is formed by right ventricle. This inferior surface is traversed by posterior interventricular groove. हम जस्ट अभी देखें कि जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है, यानी इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट कर रहा है, उसका पोस्टीरियर पोर्शन वो प्रेजेंट होता है इंफीरियर सरफेस पर. तो सेम पॉइंट यहाँ पर है दैट इंफीरियर सरफेस इज ट्रेवर्स्ड बाय पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. द डायरेक्शन ऑफ इंफीरियर सरफेस इज डाउनवर्ड्स एंड स्लाइटली बैकवर्ड्स. थोड़ा बहुत ये पीछे के साइड पर टिल्टेड रहता है. एंड इट रेस्ट्स ऑन सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम. जब हमने पेरिकार्डियम पढ़ा था तो हमने उसमें भी सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम का रिलेशन देखा था पेरिकार्डियम के बेस से. तो पेरिकार्डियम का बेस सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पर रेस्ट कर रहा था, और सिमिलरली जो इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट होता है वो भी सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम पर रेस्ट करता है. नाउ द लास्ट सरफेस इज लेफ्ट लेटरल सरफेस. It is formed mainly by left ventricle and the upper portion of this surface is formed by left auricle. So this was all about the surfaces of heart. Moving on to borders of heart, हमारे पास 4 बॉर्डर थे, सुपीरियर, इंफीरियर, लेफ्ट एंड राइट. तो हम स्टार्ट करेंगे राइट बॉर्डर से. Right border is a straight border, straight vertical border extending from superior vena cava to inferior vena cava. And right border में present होता है right atrium. It is formed by right atrium only. तो right atrium के upper portion पे होती है superior vena cava and lower portion पे होती है inferior vena cava. From right border हमारा inferior border horizontal present होता है. And it extends from inferior vena cava to apex of heart, and it is formed by right ventricle and a small portion of left ventricle.
क्योंकि हमारा एपेक्स कंप्लीटली लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करता है, तो यहां से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल स्टार्ट है और यहां पे हमारा एपेक्स. नाउ द लेफ्ट बॉर्डर इज प्रेजेंट ऑब्लिकली, कर्व्ड होता है ये बॉर्डर, एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम एपेक्स टू लेफ्ट ऑरिकल. एंड लेफ्ट बॉर्डर में प्रेजेंट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल. Now the superior surface, it extends from left auricle to superior vena cava. ये भी obliquely present होता है, and superior surface is formed mainly by left atrium and a small portion by right atrium. So this was all about the borders of heart. Borders में सिर्फ इतनी ही थ्योरी दी गई है, आप इस डायग्राम से उसको सिंपली लर्न कर सकते हैं. नाउ एक लास्ट पॉइंट बचता है क्रक्स ऑफ हार्ट के बारे में. क्रक्स ऑफ हार्ट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंटर एट्रियल ग्रूव, एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव एंड पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. सिंपली आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को छोड़ के जितने भी ग्रूव्स हमने पढ़े थे, उन सब का मीटिंग पॉइंट, उन सब का जंक्शन जो बनेगा उसे हम बोलते हैं क्रक्स ऑफ हार्ट. मूविंग ऑन टू सर्कुलेशन ऑफ हार्ट. हार्ट हमारे बॉडी में मेनली दो सर्कुलेशंस होते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन. स्टार्टिंग फ्रॉम सिस्टेमिक सर्कुलेशन, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है. यहां से एओर्टिक वॉल्व से पास होकर एओर्टा के थ्रू वो बाहर आएगा एंड इट विल प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल टिश्यूज. फिर टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा, जो जाकर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में ड्रेन होगा. यहां से ब्लड पास होगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट है, इसके थ्रू ब्लड जाएगा वाया पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज टू लंग. लंग में ब्लड ऑक्सीजनेट होगा एंड वहां से वो रिटर्न करेगा वापस हमारे लेफ्ट एट्रियम में वाया 4 पल्मोनरी वेन्स. तो जो ये नीचे वाला पोर्शन है ब्लड सर्कुलेशन का, ये हमारा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन. यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड सभी टिश्यूज में प्रोवाइड किया जाता है एक्सेप्ट लंग. और यहां से जो ब्लड पूरा ऊपर गया, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम तक ब्लड के ड्रेन होने के पूरे सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन. सो दीज आर 2 types of circulation present in human body, systemic circulation and pulmonary circulation. With this हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है. Do like, subscribe and share this video, and if you are having any doubt or any suggestion, you can comment me in the comment section. Thank you for watching.